Hello, my dear students. We'll discuss today the second part of the chapter life processes. What are life processes? The basic functions or the basic activities which are necessary for the life are known as life processes. In the previous class, we had discussed the different types of life processes. The life processes are it is nutrition, respiration, transportation and excretion. These four are the life processes. रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है भी और नहीं भी. हम इसको कुछ मेरिट्स पे लाइफ प्रोसेसेस के अंदर रख सकते हैं और कुछ मेरिट्स पे इसको लाइफ प्रोसेसेस से बाहर कर सकते हैं. तो हमने ये प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था the basic functions or the basic activities which are necessary for the life are known as life processes. We'll discuss today these life processes one by one. We'll discuss today the details of nutrition. So nutrition क्या है? It is the process of taking the food, digesting the food and using the digested food to get energy, repair and growth, and that is what the nutrition. Just हम हिंदी में कहें एक पोषण. It is the process of taking the food, digesting the food and using the digested food to get energy, repair and growth, and that is what nutrition. अब ये न्यूट्रिशन का टेक्स्ट आपको सामने शो किया हुआ है. इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज. आउटसाइड सोर्सेज मीन्स कि आप खाना खा रहे हैं, आप जूस पी रहे हैं, आप ड्रिंक्स ले रहे हैं, तो इन सब से हमें एनर्जी मिलती है. नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज टू ब्रेक डाउन दिस सोर्सेज टू रिलीज एनर्जी. दैट इज व्हाट डाइजेशन. कि फिर न्यूट्रिशन के अंदर होगा डाइजेशन होगा. That is to convert the complex form of organic compounds into simpler form. और फिर होगा absorption, फिर होगा assimilation, and that will discuss in the phases of holozoic nutrition. Process of getting nutrition can vary from organism and is affected by external environment. इस point को हम यहाँ पे explain करेंगे. This point will be explained by this slide. The process of getting nutrition can vary from organism and is affected by external environment. That is, we'll discuss today the types of nutrition. Nutrition mainly दो type का है. The one is autotrophic nutrition and another one heterotrophic nutrition. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के चार टाइप है. होलोजेनिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. मैं ब्रीफ के अंदर आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं और फिर स्लाइड के पार्ट्स को मैं थोड़ा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके समझा देता हूं. ऑटोट्रॉफिक, ओटो का मतलब है सेल. ओटो का मीनिंग हो गया है सेल. ओटो मीन्स द सेल एंड ट्रॉफिक मीन्स द नरिशमेंट. ट्रॉफिक मीन्स द नरिशमेंट. Trophic means the nourishment. This is the mode of nutrition in which organisms can synthesize their organic food from simple inorganic raw materials with the help of energy. I am passing the statement with the help of energy. क्योंकि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक एनाबॉलिक चेंज है. एनाबॉलिक चेंज एक कंस्ट्रक्टिव चेंज है. एक कंस्ट्रक्टिव चेंज है. इट नीड एनर्जी. अब वो एनर्जी है, वो केमिकल एनर्जी हो सकती है, वो एनर्जी एक
लाइट एनर्जी हो सकती है. विल डिस्कस इट लेटर. Another one, heterotrophic nutrition. Hetero means depend on others, and trophic yani nourishment. This is the mode of nutrition in which organisms depend on others for the nutritional requirements. That is heterotrophic nutrition. We the human beings, we depend on plants for the nutritional requirements. So we have heterotrophic nutrition. और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसका एग्जाम्पल प्लांट्स है. दे कैन मेक देयर own food, the organic food, that is what glucose from the simple inorganic raw materials CO2 and H2O with the help of sunlight energy, and the process is known as photosynthesis. My dear students, we'll discuss in detail the types of autotrophic nutrition and the types of heterotrophic nutrition. So we'll discuss first the autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition. Auto यानी self. Auto means the self, and trophic means the nourishment. It is the self nourishment, and that is the autotrophic nutrition. The organisms can synthesize their organic food from simple inorganic raw materials with the help of energy, and that is what the autotrophic nutrition. जो कॉमन एग्जाम्पल है, द प्लांट्स कैन मेक देयर फूड ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है वो फिर दो तरह का है. द वन इज फोटो autotrophic nutrition, and another one chemo autotrophic nutrition. दोनों ही ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है. फर्क इतना है कि यहां पर सोर्स ऑफ एनर्जी फोटो है, लाइट एनर्जी है, और यहां पर सोर्स ऑफ एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी है. दोनों ही ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है. Photoautotropic nutrition, this is the mode of nutrition in which organisms can make their organic food from simple inorganic raw materials with the help of the light energy. Example, plants, by the process of photosynthesis, they can make their food glucose from the simple inorganic raw materials CO2 and H2O with the help of green colored pigment chlorophyll and the light energy. So plants have photoautotrophic nutrition. इसका एग्जाम्पल है plants, they make the food by the process of photosynthesis. What happens in the process of photosynthesis? Plants, by making the use of raw materials, that is what CO2 and H2O, with the help of sunlight energy and the green colored pigment chlorophyll, they make their food, that is what
Glucose, it is the main product of photosynthesis. Oxygen and water, these are the byproducts. These are the byproducts or side products of photosynthesis. These are the byproducts or side products of photosynthesis. So this is what the photoautotropic nutrition is. Then what is chemoautotropic nutrition? There are some bacteria, जैसे for example the iron bacteria, sulfur bacteria, nitrifying bacteria, these bacteria, they survive on some substratum. Substrata means एक सपोर्ट जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव करते हैं एंड दे डेराइव देयर न्यूट्रिशन, दैट इज सबस्ट्रेटम. So there are some bacteria like iron bacteria, sulfur bacteria, nitrifying bacteria. They survive on substratum where they carry out the chemical reactions, and by the chemical reactions the energy is released, that is what chemical energy. With the help of that chemical energy, they make their organic food from the simple inorganic raw materials, and this is what chemoautotropic nutrition. तो दोनों ही ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है. फर्क इतना है कि यहां पर सोर्स ऑफ एनर्जी फोटो है, लाइट एनर्जी है, और यहां पर सोर्स ऑफ एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी है. So this is what the autotrophic nutrition. And then now the next we'll discuss in detail the heterotrophic nutrition. We'll discuss in detail the heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition. hetero यानी डिपेंड ऑन अदर्स, एंड ट्रॉफिक यानी नरिशमेंट. This is the mode of nutrition in which organisms depend on others for the nutritional requirements, and that is what the heterotrophic nutrition. We the human beings, we depend on plants for the nutritional requirements, so we have heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition है, it is of 4 types. The heterotrophic nutrition है, it is of 4 types. That is what saprophytic nutrition, parasitic nutrition, holozoic nutrition, and mixotrophic nutrition. Mixotrophic nutrition. Saprophytic nutrition. ये चारों ही हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स हैं. Saprophytic nutrition. This is the mode of nutrition in which an organism, a living being, depends on the dead and decaying matter. वह है saprophytic nutrition. यहां पर जो खाना खाता है, the host,
वो रहेगा जिंदा, और जो खाना खिलाता है होस्ट वो रहेगा डेड। सर गेस्ट और घोस्ट में क्या फर्क है? अगर हमारे घर पे 1 दिन के लिए आए, 2 दिन के लिए आए, 3 दिन के लिए आए तो गेस्ट है। अगर वो 1 महीने के लिए आ जाए, 2 महीने रहें तो गेस्ट नहीं, वो घोस्ट है। तो गेस्ट और घोस्ट में ये फर्क है। आप होस्ट हैं, अभी आपकी श्रद्धा है कि आप अगर 1 महीने तक 2 महीने तक रहने वालों को आप गेस्ट कहेंगे या घोस्ट कहेंगे। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, जहां पर जो घोस्ट होगा वो होगा लिविंग, और जो होस्ट होगा वो होगा डेड। So this is a mode of nutrition in which a living being takes the food from dead and decaying matter. Example, बैक्टीरिया है, फंगस है, etc. They are having saprophytic nutrition. Parasitic nutrition. Parasitic nutrition, this is the type of nutrition in which a living being takes the food from another living being, that is parasitic nutrition. This is the type of nutrition in which one living being takes the food from another living being, that is parasitic nutrition. मतलब यहां पे घोस्ट भी लिविंग होगा और होस्ट भी लिविंग होगा। यहां पे घोस्ट भी लिविंग होगा और होस्ट भी लिविंग होगा। होगा क्या यहां पे? द होस्ट इज बेनिफिटेड, द होस्ट इज बेनिफिटेड, द होस्ट इज बेनिफिटेड, इसको फायदा मिलेगा। और जो होस्ट होगा, द होस्ट इज हार्म्ड। इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन लाइस। हमारे सिर में जुए हैं। भाई आप जिंदा हैं, अब जो सुन रहे हैं तो आप जिंदा ही हैं, क्योंकि जो मूवमेंट शो करते हैं, जो रेस्पॉन्स शो करते हैं, वो जिंदा हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। और आपके सिर में जो जुए हैं वो भी जिंदी हैं। अब जिनके सिर में जुए हैं वो निकाल के देख लो, जिंदा मिलेगी। तो जो जुए हैं हमारे सिर का खून पिएगी, मोटी ताजा होती जा रही है, वो विद्या बालन बनती जा रही है डर्टी पिक्चर्स की शूटिंग करने के लिए, तो दे आर बेनिफिटेड। लेकिन हमारे सिर का खून पिएंगी तो हमें बड़ी इरिटेशन होगी, आधे पागलों की तरह रहेंगे, तो हमें नुकसान होगा। तो दैट इज द घोस्ट इज बेनिफिटेड एंड द होस्ट इज हार्म्ड। समटाइम्स ऐसी भी सिचुएशन होती है कि होस्ट की डेथ ही हो जाती है। एग्जाम्पल कसकटा। अमरवेल, मैं राजस्थान का हूं, आई एम द रेजिडेंट ऑफ जयपुर। और ये वाला एग्जाम्पल हमारे राजस्थान में आपको काफी देखने को मिलेगा। वहां पर बबूल के पेड़ पे एक पीले रंग की नूडल्स जैसी मोटी मोटी एक बेल चढ़ती है, तार की तरह है। राजस्थान में जिसको हम सूतली बोलते हैं, सूतली जितनी मोटी होती है, वो बबूल के पेड़ पे चढ़ती जाती है। बबूल के पेड़ पे जहां जहां चढ़ती जाएगी वो बबूल के पेड़ की लीव्स को खाती जाएगी।
एक स्टेज ऐसी आएगी कि पूरे के पूरे पेड़ के ऊपर अमरबेल हो जाएगी और पेड़ सूख ही जाएगा, मतलब पेड़ खत्म हो जाएगा, पेड़ यहाँ पर होस्ट है उसकी डेथ हो जाएगी, और जो अमरबेल है वो घोस्ट है वो अपना फर्स्ट क्लास चारों ओर फैल जाएगा, अपना उस पर वो घर बना लेगा। आप पेड़ के नीचे खड़े होकर देखेंगे तो लगेगा बड़ी सारे सुंदर पीले रंग की बड़ी स्पार्कलिंग नूडल्स हैं, उठा के खा लें, लेकिन बहुत हार्ड होती है। तो ये एक पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है जहाँ पर होस्ट की डेथ हो जाती है, और ह्यूमन लाइस एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पर द होस्ट इज बेनिफिटेड एंड द होस्ट इज हार्म। इसका और एग्जाम्पल है कि भैंस के गाय के चिचड़ लग जाते हैं जहाँ से हम दूध निकालते हैं थन से, तो वहाँ पर जो अडर है वहाँ पर कीचड़ वगैरह लग जाते हैं। दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। द नेक्स्ट वन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसका एग्जाम्पल है अमीबा है, ह्यूमन बीइंग है। The organism takes the solid food। भाई हम रोटी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, we take solid food and the complete process of nutrition occurs within the body of the organism, so this is holozoic nutrition। इस टॉपिक के अंदर हमें डिस्कस करना है द न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो मेरा कहने का मीनिंग ये हुआ बेटा कि हमें आपको होलोजोइक न्यूट्रिशन को डिटेल में डिस्कस करना है, बिकॉज यू हैव टू डिस्कस द न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग एंड विल डिस्कस द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। वो एक फोटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है, तो इसका हमें डिटेल में डिस्कस करना है। इन द नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे द टाइप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, मतलब होलोजोइक न्यूट्रिशन की फेजेस डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, एक एडिशनल डेफिनेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, करनी भी चाहिए। कोविड पीरियड है और हमें टेक्स्ट तक ही नहीं पढ़ना चाहिए, हमें आज के डेट में जो भी पढ़ाई करनी है वो कंटेंट के लिए करनी चाहिए, क्योंकि 9th-10th के अंदर आपका बेस अच्छा बनेगा, आपका कंटेंट तैयार होगा, तो वही 9th-10th का सिलेबस है वो +1 +2 में रिपीट होगा। और 9th-10th का आपका अगर बेस अच्छा होगा तो +1 +2 के अंदर आप अच्छे से अपनी रेस लगा पाएंगे, और लेटर ऑन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे मेडिकल का है या नॉन मेडिकल का है, आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे अगर आपका बेस अच्छा है। इसीलिए 9th से लेकर +2 तक के 4 साल आपके करियर डिसाइडिंग ईयर्स है। 9th-10th को बोला गया है फाउंडेशन क्लासेस, +1 +2 है वो आपकी करियर क्लासेस है। तो मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन एक एक्स्ट्रा है, दिस इज फॉर फाउंडेशन पार्ट। मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म बिहेव इन ऑन द बोथ द मोड, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एज वेल एज हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। On one part it is making the food, synthesizing the food, and on the another part it depend on others for the nutritional requirements, that is mixotrophic nutrition। इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। तो यूग्लिना है डे टाइम के अंदर ये फोटोसिंथेसिस करेगा और रात के अंदर ये सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करेगा। हम ये कहें कि इट इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एज वेल एज हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन बिहेवियर। किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स ऐसा करते हैं, और किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स के अंदर यूग्लिना है जो दिन के अंदर फोटोसिंथेसिस करता है, दैट इज द पार्ट ऑफ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और रात के अंदर सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन करता है, दैट इज द पार्ट ऑफ हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सो दिस इज व्हाट द मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ये थोड़ा सा एक एडिशनल पार्ट था, यू मस्ट नो कि ऐसा कहाँ होता है नहीं होता है। विल डिस्कस one more term related with saprophytic nutrition, and that is what scavengers।
This is a type of nutrition a living being feed on the meat or the flesh of dead bodies. वो है scavengers. Example: vultures, eagle, kite. तो ये है scavengers. They feed on meat or the flesh of डेड बॉडी. मेनली इसमें वल्चर्स होता है, क्योंकि ईगल है वो तो लिविंग बीइंग को पिक कर लेता है, लेकिन जो मेनली है वो वल्चर्स है. वल्चर्स दे फीड ऑन द मीट और द फ्लैश ऑफ डेड बॉडीज. तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, and this is all about what is nutrition and the types of nutrition. तो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक था एक ये छोटी क्लास है जिसके अंदर हमने न्यूट्रिशन को डिस्कस किया है एंड टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को डिस्कस किया है. ये एकेडमी की डिटेल्स है. आई नीड योर सम वर्ड्स फॉर मोटिवेशन, ताकि इस कोविड पीरियड के अंदर मैं आपको मैक्सिमम मेरी क्लासेस हैं वो देने की कोशिश करूं. हमारा यूट्यूब के ऊपर सांकला क्लासेस है, इसके नाम से आप सर्च कर सकते हैं, और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें. ये हमारा ईमेल आईडी है, ये फेसबुक पर है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं. सो दिस आर द डिटेल्स फॉर एकेडमी. थैंक यू.